Video we will learn how to find the modulus and argument of a complex number. So I have taken a complex number like 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota, and here we have to find the argument and modulus of this question. Okay, so before moving to this question, I think I should talking about the some simpler one. Okay, so if I have given a complex number like z is equal to 1 plus 2 iota, we can say, and if you have to find the modulus of the complex number, how can you do that? So modulus of the complex number is represented by the mod of the z, and it is found by like this one, 1 ka square plus 2 ka square. This, that is, we have taken the square root of the real part of the complex number, a square root of the square of the real part of the complex number, and imaginary part of this square of the imaginary part of the complex number. So in this way we can find the modulus of this complex number. Okay, so here we have get the modulus as root under 1 plus 4, 1 plus 4, and this is under root 5. And so this is the modulus of this complex number. See what do this modulus represent in the argand plane. What is the argand plane? The complex plane is called argand plane. Okay, so what does the modulus symbol indicate? So if we take a Cartesian plane, and we have represented this point as 1 comma 2, and it can also represent at 1 plus 2 iota, in which this 1 is representing the real axis, and this one represented the imaginary axis. Okay, so in this way we can represent it. So what do this modulus value represent? So modulus value is represented at what is the distance of this point 1 comma t from the 1 comma 2 from the origin. Okay, so this is the modulus of the z. And what is argument here? So what is argument here? तो argument का मतलब यहाँ पे क्या है कि argument means what do this line joining the complex 1 comma 2 making angle with the positive direction of the x-axis. So what is the angle that is making with the positive direction of the x-axis? So okay, so how can you find this argument and the modulus of this complex number? So initially I have said that if you have to find the modulus of the complex number, so, given you have given a complex number x plus iota y, and you have to find the modulus of this complex number, simply what you have to do is take the square root of the imaginary part of the x, real part of the complex number, and the imaginary square of the imaginary part. So in this, by using this formula, you can find the modulus. And if you have to find the argument, generally this is represented by the angle theta or alpha or beta. You can use any symbol to represent the argument. So argument is simply the angle. So how can you find this argument? So if you have to find this argument, take the tan inverse of the imaginary part, and divided by the real part. Okay, so you can find this आर्गुमेंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली. ठीक है, इफ जैसे कि हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 प्लस 2 आयोटा. क्या था हमारे पास? z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा हमारे पास था, एंड यू हैव टू फाइंड दिस आर्गुमेंट. सो हाउ कैन यू फाइंड दिस आर्गुमेंट? tan इनवर्स 2 अपॉन 1. सो दिस इज द आर्गुमेंट हियर. Okay, since the real part is also positive and the imaginary part is also positive, it means that the angle that is forming the point is in the first quadrant. Okay, so now let's move to the question that I have taken in the beginning. 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota. 1 plus 2 iota divided by 1 plus 3 iota. I have taken, I think, and 1 minus 3 iota I have taken. 1 minus 3 iota I have taken. ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सो हाउ विल वी डू दैट? सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दिस इन द स्टैंडर्ड form. Firstly, we will convert this in the standard form. And what is the standard form? Z is equal to x plus iota y. For converting this into a standard form, what will we do is convert this by like this.
1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota, multiply this by you can use here the concept of the rationalization only. ठीक है, तो 1 plus 3 iota and 1 plus 3 iota. So multiply this one. So 1 into 1 plus 3 iota and plus 2 iota 1 plus 3 iota we can get here, and multiply this is in the form of a minus b and a plus b. Okay, so multiply this, and 1 plus 3 iota 1 plus 3 iota plus 2 iota minus 6. Why this is minus 6? You can write like you can write this like this one only, iota का square. Okay, so we have here 1 का square minus 3 iota का whole square. Okay, so after that we can write like this 1, and this here we have we know that iota square is equal to minus 1, so you can write this one 1 plus this is 1, this one is 5 iota, and here we have minus 6 because why like this? Because iota square become minus 1. Okay, so here we have minus 6 and here we have 1. Since we have here we have 1 minus 3 square and iota ka square, so this is minus 5 plus 5 iota, and here we have 1 plus 9. Why? Because iota square become minus 1, and minus 1 into minus 1 plus 1, so what we have get here is 1 plus 9, and this is minus 5 plus 5 iota upon 10, and we have here 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 iota. So this is the standard form of the given complex number. This is the standard form of the given complex number. So after converting this complex number in the standard form, what you have to do here is find the modulus. Find the modulus of the कॉम्प्लेक्स नंबर. सो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस? तो हमने बताया शुरुआत में कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ इसको लो आर से नोट करते हैं, तो अगर मॉड्यूलस फाइंड करना हो तो आपको इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर. ठीक है, तो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें अगर हमारा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिया है ए नंबर. ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक्स जो है वो माइनस 1/2 है और वाई जो हमारे पास है वो 1/2 है. अगर ऐसा हमारे पास है तो व्हाट वी कैन डू हियर इज फाइंड द मॉडुलस. ओके, फाइंड द मॉडुलस. सो रूट अंडर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, एंड हियर वी हैव root under 1/4 plus 1/4. So we can add this and get 2/4, and here we have 1/2 equal to 1/√2, and we can also write this like this one as well, only √2/2 in the standard form. So this is the modulus. This is the modulus of the given complex number. सो इफ़ यू हैव टू फाइंड द आर्गूमेंट ऑफ दिस वन, है ना. अगर आपको क्या फाइंड करना है, आर्गूमेंट फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे? तो थीटा इज इक्वल टू क्या करें हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स आपको पता है कि y अपॉन x होता है, तो tan इनवर्स अगर y अपॉन x हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना है? तो y का वैल्यू 1/2 है, और x का वैल्यू हमारे पास कितना है? तो x का वैल्यू -1/2 है. तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा जो है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ गड़बड़ लिखा हो क्या. सो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा x जो है वो नेगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है. ये एक्सप्रेस करता है कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स, क्योंकि ये tan इनवर्स बन जाएगा, तो पाई/4 होगा. तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3π/4. तो ये हमारा क्या होगा? हमारा आर्गूमेंट होगा. हमारा क्या होगा? ये आर्गूमेंट होगा ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर.
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, आर्गूमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी में आपको मान लिया जाए कि आपको बोल दे कि इसको आप पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, क्या कीजिए, पोलर फॉर्म एक्सप्रेस कीजिए। तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो चलिए हम इसको एक्सप्रेस करके दिखाते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग पोलर फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो पोलर फॉर्म के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा जेड है वो किस प्रकार से होगा, तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो आप देख पा रहे हो ये आपका आर है क्या, तो ये जो आपका आर है वो क्या आपके पास मॉड्यूलस है ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आपका मॉड्यूलस है। और ये थीटा क्या है, तो थीटा आपका आर्गुमेंट है, क्या है, ये आपका थीटा क्या है, तो आर्गुमेंट है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, तो जेड जो आपके पास आ गया, सॉरी आपको जो आर आ गया वो क्या आपके पास, तो आर हम लोग निकाला था कितना, तो √2/2 निकाला था, या फिर आप निकाला था 1/√2 निकाला था। और कॉस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ये आपका क्या आ गया, तो आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा, तो हम लोगों शुरुआत से देखता हूँ कि हमने देखा कि हमने सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 1+2 आयोटा, उसका मैंने मॉडुलस निकाला, ठीक है, मॉडुलस निकाला चूँकि मेरे √5 के बराबर आ गया। और वो मॉडुलस वैल्यू आपको रिप्रेजेंट क्या करता है, तो वो मॉडुलस वैल्यू जो है आपको रिप्रेजेंट करता है क्या, कि उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। और वहीं पर अगर आपको आर्गूमेंट निकालना है तो आर्गूमेंट आपको रिप्रेजेंट करता है क्या, कि आपका जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आपका आर्गन प्लेन में है, और जो अगर हम ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो कितना का एंगल हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव क्या बोलते हैं आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में किस प्रकार से क्या एंगल बनाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बनाता है, ठीक है। तो वो उससे कहलाता है आर्गुमेंट, क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, तो आर्गुमेंट भी फाइंड किया और इसका मैंने क्या किया, मॉडुलस भी फाइंड किया, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने मॉडुलस भी फाइंड किया, आर्गुमेंट भी फाइंड किया, तब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो हमारे पास आया, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस फाइंड करते हैं, और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, तो इसका हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन शुरुआत में लिया था कि जेड इक्वल टू 1+2 आयोटा अपन 1-3 आयोटा। इसको सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि इसको किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो आफ्टर कन्वर्टिंग दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो अगर आपके पास जेड इक्वल टू -1/2 है, +1/2 आयोटा है, और आपको क्या करना है कि उसका आपको क्या करना है कि मॉडुलस निकालना है। तो हमने तो यहाँ पर इसको पहले कन्वर्ट तो कर चुका हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आर्गुमेंट मॉडुलस निकालने हम लोग क्या करते हैं, तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसका हम लोग जो है स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर x² ले लिया और y² ले लिया, तो मैंने वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/√2 के बराबर आ गया, ठीक है। अगर फिर आपको अगर आर्गुमेंट फाइंड करना है तो आर्गुमेंट कैसे निकलता है, तो आर्गुमेंट निकलता है क्या, तो आर्गुमेंट आप जैसे देख लीजिए कि अगर आपके पास ये मान लीजिए कि आपके पास है कोई लाइन और ये आपका कोई लाइन है, तो आप यहाँ क्या करते हैं, ये आप टैन ऑफ एंगल निकालते हो ना, टैन थीटा कैसे निकालोगे, तो टैन थीटा निकालोगे, वाई ये हमारा एक्स है तो y/x निकालोगे। अगर थीटा निकालना हो क्या करोगे, तो टैन इनवर्स y/x कर दोगे। तो एकदम सेम फॉर्मूला यहाँ पे है कि किस प्रकार से एंगल निकालना है, मतलब कि y उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस कितना है, और उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस कितना है, उसका हम लोग रेशियो निकाल देते हैं, उसका एंगल निकाल देते हैं, हमारा टैन ऑफ एंगल निकाल देते हैं, हमारा एंगल आर्गुमेंट निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आर्गुमेंट निकाल लिया, तो आर्गुमेंट कितना पता है 3π/4 आया। तो आर्गुमेंट जब निकाल लिया तो उसका एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया कि किस प्रकार से हम उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है क्या होता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर होता है, ठीक है। जहाँ पर आर जो हमारा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा थीटा है वो आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर दिया, हमारी आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हैं, और साथ में उसको पोलर फॉर्म इस प्रकार से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, थैंक यू।